Welcome back again. I'm Rajesh Mohan, and in this particular video, I'm going to talk about one important aspect of competitive exam preparation, which is the simultaneous preparation of common or overlapping syllabus exams. This happens in most of the competitive domain, but regulatory exams में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं, those are only preparing for RBI grade B, only preparing for NABARD grade A, only preparing for SEBI grade A. But guys, the risk with preparing only for one particular exam is that अगर कुछ थोड़ा बहुत भी उल्टा पुल्टा होता है तो आपको फिर से एक साल वेट करना पड़ता है. और ऐसे कई सारे लोग हैं, बिकॉज नॉट एवरीवन वुड बी गेटिंग सिलेक्टेड, राइट. देयर आर ओनली 200+ सीट्स. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बाद बाकी जो बचे हुए 1,50,000 पीपल है, दे वुड हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट कि आपको जो कॉमन और ओवरलैपिंग सिलेबस एग्जाम्स होते हैं उसको फाइंड आउट करना चाहिए. बिकॉज इफ यू आर अ सीरियस कंटेंडर, इफ यू हैव द काइंड ऑफ स्किल्स, और मे बी थोड़े मार्क्स के लिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आप इंटरव्यू वगैरह में मेरिट में बार बार छट जा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम से सेटलमेंट मिल जाती है. ओके और ये मैंने अभी रिसेंटली IRDA में भी देखा. IRDA में कई सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जो कि प्रीवियसली RBI और NABARD में नहीं जा सके, तो अभी IRDA में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया. ये मैंने ऐसे देखा कि कुछ लोग RBI नहीं जा पाते तो वो NABARD में अल्टीमेटली सेटल हो जाते हैं. तो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग, बट आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. सो विद दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन each and everything like salary, exam syllabus, cutoff, how many people apply, all the things in this particular video. So watch this video till end. And also, if you have not subscribed this YouTube channel, please do subscribe and like the video. Let's get started. Guys, if you have decided preparing for RBI and NABARD simultaneously, then I have launched a combo course in which you can prepare both the exams, RBI grade B as well as NABARD grade A, with a checklist method of mine, where you get weekly checklist to complete 1 unit or 2 units of your syllabus. At the same time, you also prepare for QRE simultaneously. And with this method, you can complete the syllabus by giving 3 to 4 hours on a daily basis. So all those who are working somewhere, working aspirants, this particular course is very important for you. Even for the non-working aspirants, if they are focusing on different exams, but they can allocate 3 to 4 hours in a day on RBI or regulatory exam preparation, then I can give you assurance that this particular course is going to be definitely very helpful for you. So if you decide preparing for RBI plus NABARD after watching this particular video, then I would suggest to enroll for this course, this combo course, for which link has been given in the description, and all the detailed features are available on the screen also, as well as on the course portal also. वहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियरली लिखा हुआ है, कब क्या चीज प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या चीज आपको इस कोर्स के अंतर्गत दिया जाएगा. अगर आप देखो तो जो इंडिविजुअल कोर्स है, जैसे मेरा RBI का कोर्स है, उसका प्राइस है 2499, और NABARD का जो कोर्स है उसका मेरा प्राइस है 2199. आपको ओवरऑल होता है 4698, मतलब 4700 रुपीज. बट दिस कॉम्बो कोर्स इज अवेलेबल एट 3999 रुपीज. गाइज मैं डिस्काउंट वगैरह आपको ज्यादा उसे नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे प्राइसेस होते हैं वो कट टू कट होते हैं. ऐसा मेरा विश्वास है कि आप एक रीजनेबल प्राइस रखो तो डिस्काउंट वगैरह देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आपको 10,000 प्राइस रख दिया और उसमें 50% का हर वीकेंड पर डिस्काउंट दे दिए. मेरा वो फंडा नहीं रहता है. तो जितना रीजनेबल लगता है कि मेरे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग जितना मेरा बनता है, वो चीज मैं आपको बस एक्सपेक्ट करता हूं, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइसेस वगैरह सेट किए गए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ आई टॉक अबाउट द प्रीलिम एग्जाम ऑफ बोथ द एग्जाम्स, पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दैट वी विल सी फर्स्ट. ओके सो हियर 4 sections are there in RBI grade B: general awareness, quantity aptitude, English language, reasoning ability. Here also in the NABARD grade A, you have reasoning ability, English language, quantity aptitude, and general awareness. Although the difference is in number of questions, here even in RBI grade B you have a sectional time. Okay, although here also the weightage on general awareness is too much. Okay, here you have 80 questions for 80 marks and you have to solve in 25 minutes. And in the recent year, especially in last 3 years, starting from 2021, we have seen that कि जो general awareness है, this particular general awareness is not general awareness, basically ESI current affairs, because they are asking around 60 to 70% question from ESI current affairs. So what comes under ESI current affairs? ESI current affairs के अंतर्गत आपको आता है सबसे पहले RBI और SEBI के सर्कुलर्स.
आरबीआई और सेबी के सर्कुलर्स आते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस आते हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी आती है। ओके, आरबीआई सेबी के सर्कुलर्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी जो आपको पीआईबी वगैरह में मिलता है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी आती है। देन कम्स द रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, दोज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। देन कम्स द बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, banking and economic affairs. These are the four things that come under the economic current affairs. And if you will analyze the previous 3 years, then you would see that most of the questions, around 60 to 70% questions, around 50 questions out of 80 questions were from these segments. And that's why I always say that general awareness is nothing but it's a ESI current affairs. And that same ESI current affairs is also over here for 40 marks in NABARD grade A. ओके, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 40 का है, 40 20 60 हो गए। तो सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं उतने ही मार्क्स के आपको जनरल अवेयरनेस प्लस ESI करंट अफेयर्स वगैरह पूछा जाता है। बस एक ही डिफरेंस है, वो ये है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, एंड हियर यू हैव कंप्यूटर नॉलेज आल्सो इन डिसीजन मेकिंग। बट ऑल दीज सेक्शंस, ऑल दीज 5 सेक्शंस जो आपको ब्लैक कलर से आपको है, जो ब्लू कलर वाले ये मेरिट सेक्शन है और ये नॉन मेरिट सेक्शन है। Now what is merit and what is non merit? In NABARD grade A you have total 200 marks like RBI grade B, but you have here 8 different subjects. Out of 8 different subjects, 5 subjects are non merit subjects. In these 5 subjects you just need to clear the sectional cutoff. ओके, आपको क्या करना होता है, यू जस्ट नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, नो नीड टू स्कोर 15 मार्क्स और मे बी 20 मार्क्स, यू जस्ट नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। योर selection would be based on these 100 marks. Here you need to score maximum marks, or whatever the overall cutoff is, you need to score that much marks. Okay, here from all these 3 subjects. तो ये आपको मेरिट और नॉन मेरिट का फंडा होता है। आपको पूरा ओवरऑल 120 मिनट्स दिए जाते हैं, बट आरबीआई में आपको 120 मिनट्स जो है वो सेग्रीगेटेड होता है, मतलब अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको वो डिवाइडेड होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो बस आप देखो डिफरेंस क्या, डिफरेंस बस कहाँ पर आता है, वो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का एक डिफरेंस है। डिसीजन मेकिंग वगैरह थोड़ा बहुत वो कह सकते हो उसको डिफरेंस है, बट वो सेक्शनल है तो उतना पढ़ के आपको सेक्शनल आप निकाल सकते हो। तो एक मेजर जो डिफरेंस आता है वो आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के आता है। यही चीज आपको इवन मेंस एग्जाम में भी देखोगे। सो इफ आई टॉक अबाउट द फेज 2 एग्जाम पैटर्न, you can see that here even the phase 2 exam, the way of conducting phase 2 exam is similar to RBI grade B. Okay, here in RBI grade B you have 3 paper, paper 1, paper 2 and paper 3, but in NABARD grade A you have only 2 paper, paper 1 and paper 2. 3 अलग अलग रो बने हुए हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि 3 अलग अलग पेपर है, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो आपको 3 रो बनाया गया। पेपर 2 ही होते हैं, देयर आर ओनली 2 पेपर्स, बट इन RBI grade B you have 3 papers. Okay, so first paper in RBI grade B is based on economics and social issue. Second paper is descriptive English or English writing skills, and third paper is finance and management. In NABARD grade A you have once again paper 1 which is general English, same as RBI grade B. Okay, but here you have paper 2 in the form of economics and social issue plus agriculture and rural development, because they have combined 2 subjects, ESI and ARD, in a single paper. Okay, but in case of RBI grade B you have economics and social issues separately and you have finance and management separately. Okay, तो बस वहां पर आपको यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ कि एक FM जो है, जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, वो आपको RBI में अलग से पढ़ना पड़ता है और NABARD में आपको ARD अलग से पढ़ना पड़ता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन RBI एंड NABARD। तो ये 2 सब्जेक्ट मतलब एक ESI FM एंड ARD अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका जो है RBI प्लस NABARD दोनों का प्रिपरेशन हो जाता है, राइट। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर देखो तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो भी है, यहाँ भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट होता है, ऑल्दो द वर्ड लिमिट इज डिफरेंट। यहाँ पर आपको NABARD का थोड़ा सा इजी होता है, RBI का डिफिकल्ट होता है। ओके, इन RBI दे आस्क यू essay, प्रीसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट इन NABARD दे आस्क यू essay, लेटर एंड प्रीसी, essay, प्रीसी एंड RC पूछते हैं वो लोग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट इन NABARD दे आस्क यू essay, लेटर एंड प्रीसी राइटिंग। In RBI the number of words word limit is 600, but in NABARD they ask you around 350 words. Okay, लेटर में 200 वर्ड के अराउंड रहता है, 150 to 200 वर्ड्स का आपको रहता है, और प्रीसी में आपको 135 वर्ड के अराउंड रहता है।
ओके, तो ये चीज़ें आपको, जबकि अगर देखोगे तो मार्क्स एंड टाइम जो आपको दिया था वो सेम टू सेम है। ओके, पैटर्न सेम रहेगा, इंटरफेस सेम रहेगा, आपको कीबोर्ड के माध्यम से टाइपिंग करनी है, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर हम लोग डिस्क्रिप्ट यहाँ पर अगर पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू और फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करो तो यहाँ पर पेपर 2 भागों में बटा होता है। सेक्शन ए होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव आपके 30 मार्क्स के होते हैं, सॉरी 50 मार्क्स के होते हैं। हियर यू हैव 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मिनट। 30 क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 1 मार्क्स। सो ओवरऑल कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए। सेम टू सेम आपको जो यहाँ पर आरबीएम भी होता है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस मीन्स 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। वंस यू गेट ओवर विद दैट, उसके तुरंत बाद मतलब विदाउट एनी ब्रेक आपको तुरंत बाद जो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है। और डिस्क्रिप्टिव में आपको जो है 90 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है? 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। हियर यू हैव 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दैट टू डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। 15 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन बी में आपको 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल 6 क्वेश्चन है, 3 आपको जो है 15 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब आरबीआई में क्या होता है कि आपको उस 3 में से कोई 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और 3 में से कोई 2 आपको 10 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। बट नबार्ड में आपको मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, 3 में से 1 क्वेश्चन मैंडेटरी होता है और उसमें से 2 में आपको ऑप्शन दिया जाता है, रिमेनिंग 2 में आपको जो है वो ऑप्शन दिया जाता है। सिमिलरली 10 मार्क्स में भी तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि टाइपिंग करने का वर्ड लिमिट, आपको एग्जाम में टाइम कितना दिया गया, वो सारी चीजें, इंटरफेस वगैरह सब कुछ कॉमन रहता है, सब कुछ सेम टू सेम आरबीआई जैसा रहता है। ओके, यही चीजें आपको देख सकते हो कि इवन पैटर्न वाइज भी आपको बस सब कुछ सिमिलर है, बस एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। आरबीआई में आपको जो फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ना है और नबार्ड में आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है एडिशनली। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर देखोगे, एनालिसिस करूं तो आरबीआई का कट ऑफ इस तरह से गया है दोस्तों। 2023 का यहां पर मेंशन नहीं है, 2023 में आपको पता ही है कट ऑफ 53 के अराउंड गया हुआ है। ओके, तो यहां पर आप देखते हैं और सेक्शनल सेम था 2023 में भी, तो 63, 66, 122। ये 122 तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि पेपर उस टाइम 2019 में काफी इजी आ गया था। ओके, जस्ट लेट मी वेरीफाई कि कितना, मैं ध्यान एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, सो दैट्स व्हाई। या फॉर जनरल कैटेगरीज फॉर 54.525 जो था वो आपको कट ऑफ गया हुआ है। ओके, फॉर इन 2023 54 मार्क्स आपको कट ऑफ गया हुआ है। अब देख सकते हैं कट ऑफ जो है वो काफी कम ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। ओके, जैसे कि हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस का भी काफी अच्छा पेपर आता है, क्वांट काफी आता है। और देखो कट ऑफ कम इसलिए जा रहा है क्योंकि लोग सेक्शनल क्लियर नहीं कर पा रहे। इट्स नॉट लाइक पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ, पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर 54 मार्क्स। लोगों के 70 मार्क्स आ रहे, लोगों के 75 मार्क्स आ रहे हैं, बट दे आर मिसिंग इन द सेक्शनल कट ऑफ। लाइक सम पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर द रीजनिंग एबिलिटी, सम पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर इन सेक्शनल कट ऑफ इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इस कारण से आपको दिक्कत हो रही है। इवन आप फेज 2 का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो, फेज 2 का कट ऑफ भी आपको ईयर वाइज यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है। इवन इंटरव्यू स्टेज का फाइनल कट ऑफ भी आपको दिया हुआ है। इंटरव्यू स्टेज का भी आपको फाइनल जो कट ऑफ आता है आउट ऑफ 375 मार्क्स। आपको पता है यहाँ पर 300 नंबर का फेज 2 होता है। ओके, और 75 मार्क्स का आपका जो है वो इंटरव्यू स्टेज होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है टोटल 375 मार्क्स बनते हैं। सिमिलरली इफ आई कंपेयर विद द नबार्ड ग्रेड, यहाँ पर भी जो है जब से पैटर्न चेंज हुआ 2021 से जो है यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हुआ है, एआरडी वगैरह का, ईएसआई वगैरह का, और उस कारण से अगर आप देखोगे यहाँ पर भी जो है आपको कट ऑफ काफी कम जा रहा है। जैसे कि हम लोग इस बार की बात कर लेते हैं 2023 में, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कट ऑफ वुड गो अराउंड 38-39। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कट ऑफ वुड गो अराउंड 38-39। अगर आप देखो 2022 में कितना गया था, तो 2022 में आप देख लो कितना गया, 41.75 जनरल कैटेगरी का गया है फॉर जनरलिस्ट पोस्ट। ओके, सिमिलरली सेक्शनल वगैरह आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वही चीज कंपेयर करो तो 2021 में जबकि पेपर थोड़ा सा इजी आया था 53.50 गया था, और ये कट ऑफ एकदम से गिरकर 41.75 आ गया जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। ओके, और इस बार तो ये गिरकर 38-39 आ सकता है।
पेपर डिफिकल्ट नहीं हो रहा। जो लोग तैयारी करके जा रहे हैं उसको कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो इतना मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेंगे। देखो पेपर जब डिफिकल्ट आता है तो अपॉर्चुनिटी पढ़ने वालों की बनती है, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंटेंट उनको पता है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी बनती है, ना कि तुक्के मारने वालों की या रेंडमली जिसने 15 दिन 20 दिन पढ़ा है। जो 6 महीने सिंसियरली पढ़ा है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि 1 महीने 1.5 महीने पढ़ के जो है एग्जाम क्लियर कर ले। उससे जो है गलत एक तरह से मैसेज आता है कि यार मैंने 2 महीने में क्लियर कर लिया। फिर जो लोग 6 महीने से पढ़ रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से निगेटिव फील होता है, अरे यार मैं भी 1.5 महीने पढ़ता बस। तो वो चीज़ें होती हैं, जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो ये 1.5 महीने वालों को दिक्कत हो जाता है, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ओके, तो यही डिफरेंस होती है। अगर सैलरी कंपेयर करो तो सैलरी आरबीआई ग्रेड बी का इस तरह से आपको यहाँ पर बेसिक पे जो है वो 55,200 है, और सिंपली बेसिक को डबल कर दो उतने ही आपको इन हैंड वगैरह के मिलते हैं। तो इनिशियल ग्रॉस जो है आपको वो 1,16,000 रुपये पड़ता है। इसके अलावा आपको अलाउंस वगैरह सब ढेर सारे जुड़ के 1,48,000 के लगभग बनते हैं, 1.48 लाख के लगभग बनते हैं, बट वो अलाउंस वगैरह है इतना। लेकिन ग्लॉस वगैरह आपका जो है 1,16,000, मतलब जो आपका डियरनेस अलाउंस वगैरह गेट अलाउंस लगा कर जो इतना बन जाता है। उसके बाद के जो आपको अलाउंस वगैरह होते हैं उसको जोड़ के तो और भी आपका सैलरी वगैरह बन जाता है। ओके, तो इतनी सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है, नो डाउट। आपको 1,10,000 1,12,000 आपको इन हैंड जो है वो हाथ में आता है हर महीने। इवन उससे 1,18,000 1,20,000 के लगभग आपको इन हैंड तक मिल जाता है। अगर अलाउंस वगैरह या आप और चीज़ों को जोड़ते हो तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो इन हैंड मिलता है। सिमिलरली नाबार्ड का सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है, इवन सैलरी स्लिप भी मैंने ऐड किया हुआ, लेटेस्ट अप्रैल मंथ का ये सैलरी है। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ग्रॉस इनरोलमेंट आपका 1,09,000 के लगभग बनता है। लेकिन देखो यहाँ पर बेसिक जो है वो 44,500 है, और रिसेंटली क्या हुआ, पे पैरिटी हुआ है। पे पैरिटी करने का मतलब है कि जो आरबीआई ग्रेड ए का सैलरी है वही नाबार्ड ग्रेड ए को मिलेगा। आपको पता है ना कि ये नाबार्ड ग्रेड ए है ना कि ग्रेड बी है। यहाँ पर आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो, आरबी में एज ए मैनेजर ज्वाइन करते हो। इसीलिए लोग इवन नाबार्ड ज्वाइन करने के बाद भी आरबीआई का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली आप मैनेजर ज्वाइन करते हो एक लेवल अप। यहाँ पर आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे, देन यू वुड मूव टू एम मैनेजर, देन फिर आप जो है एजीएम बनोगे, फिर जीएम बनोगे। इस तरह से आपको जो है आपका हायरार्की बनता है यहाँ पर। लेकिन इसमें आरबीआई में क्या होता है कि आप डायरेक्टली एम बनते हो तो उसके बाद जो है आप एजीएम बन जाते हो। ओके, यहाँ से आपका एजीएम बन जाते हो, तो वो प्रमोशन आपका जो है इस तरह से होता है। तो जो आरबीआई के ग्रेड ए है, जो आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन आरबीआई आपको ग्रेड ए का बहाली नहीं करता है। वो जितने भी असिस्टेंट आरबीआई असिस्टेंट होते हैं उसको प्रमोट कर दिया जाता है 3.5 ईयर में। 3 to 4 ईयर्स में आपको जो है, कुछ लोगों का 3.5 ईयर में, कुछ लोगों का 4 साल में जो है प्रमोशन हो जाता है, एंड थ्रू प्रमोशंस दे बिकम ग्रेड ए। उसके थ्रू जो है आपको वो ग्रेड ए बनते हैं, और उनकी भी सैलरी आपको जो है उनकी बेसिक वही 44,500 रहती है। ओके, यही बेसिक उनको भी मिलता है। तो ये बेसिक आपका वो रहता है। इसके अलावा अलाउंस वगैरह ग्रेड पे ये सब मिलता है, तो काफ़ी वो सब। देखो ज़्यादा सैलरी आपकी बनती है किस चीज़ से, अलाउंस से बनती है। सैलरी आपका जो बेसिक है वो तो ठीक है, उसके अलावा जो अलाउंस वगैरह आपको है ढेर सारे, जैसे लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस होती है, ये आपको हाउस रेंट अलाउंस है, ये आपको कंपेंसेटरी अलाउंस है, ये सब मिलाकर आपका सैलरी जो है वो अच्छा खासा बनता है। तो यहाँ पर भी आपको नो डाउट अच्छा खासा आपको जो है इन हैंड मिल जाता है। ओके, इवन सिडबी में भी वहाँ भी अच्छा खासा आपको इन हैंड मिल जाता है। सिडबी में भी अभी मेरी बात हो रही थी 1 लाख के लगभग, वहाँ पर भी आपको इन हैंड मिल जाता है। एनएचबी वगैरह भी आपको जो है सिडबी एनएचबी ये सब भी आपको अच्छा खासा सैलरी देती है। एलआईसी डबल एम आपको सैलरी अच्छा है, 5 डेज वीक है। ओके, एलआईसी डबल एम आपको अच्छी खासी सैलरी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कि ये सब अगर आप सैलरी वाली देखोगे या आपको वर्क लाइफ बैलेंस देखोगे तो ये सब जॉब आपको अच्छा खासा ये चीज़ ऑफर करता है। तो इन सब एग्जाम्स पर आप फोकस कर सकते हैं, जस्ट आप फोकस कर सकते हो। अगर हम लोग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो इन प्रीवियस ईयर आपको जो है जो 2022 में कितने लोगों ने एपीआर किया, तो ये आपको फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का जो है इंटरव्यू स्टेज तक का आपको कैटेगरी वाइज आरटीआई रिप्लाई है और वो डाटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 91,000 के स्टूडेंट जो है वो एक तरह से उन्होंने एपीआर किया था फेज 1 एग्जाम में। ऑल्दो द एप्लीकेशंस वेयर अराउंड 1,30,000 जो आपको एप्लीकेशंस था, बट इतने लोगों ने एपीआर हुआ था। दिस ईयर इन नंबर ऑफ 2023 द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज 1,56,000 और 73% लोगों ने अपीयर हुए हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन 2021 वाज 1,78,000। नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन 2019 वाज 1,58,000। तो यही 1,50,000 के लगभग जो है, और ये डाटा मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये भी 1,50,000 के लगभग या 1,48,000 होगा।
तो उसी के अराउंड जो आपको 1.5 लाख लोग यहाँ पर जो फॉर्म फिल करते हैं, आरबीआई ग्रेड में भी आपको अप्लाई करते हैं। ओके, हालांकि जो नंबर ऑफ पीपल अपीयर करते हैं वो काफ़ी कम होता है, और जो कंपटीशन होता है वो और भी कम होता है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम बैंकर्स हैं, और बैंकर्स में क्या होती है कि आधी आबादी बस कोर्स बाय करती है और वो पढ़ाई नहीं करती, क्योंकि उनके पास अलग अलग वर्कलोड होता है और अलग अलग एक्सक्यूजेज होता है बेसिकली उनके पास, तो दे डोंट प्रिपेयर फॉर सीरियसली। बट देयर आर सी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बट ऐसे काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो सिंसियरली, मेरे खुद के बैच में ऐसे कई सारे स्टूडेंट, जो मैं अभी आरबीआई ग्रेड बी का बैच चला रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे बैंकर्स हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन करें, बिकॉज दे वांट टू कम आउट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड दे गेट इनटू द आरबीआई। ओके, तो वो जो एक होती है ना कि आपको जो डिटरमिन है, आप एक गोल है, उसके लिए जो वो फोकस है, तो उसमें से काफ़ी सारे लोग वो उस पर फोकस कर रहे हैं, अभी से 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो अर्ली मूवर्स को काफ़ी बेनिफिट होता है, उसको एंड मोमेंट पर पैनिक नहीं होता है। ओके, क्योंकि उसने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ऑलरेडी उसने रिवीजन कर रखा है, ऑलरेडी उसने चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर रखा है, तो उसको जो बेनिफिट मिल जाता है। एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज से ये आप अर्ली मूवर्स किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में देख लो, जो अर्ली मूवर्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलता है। इसीलिए आप लोग भी जल्दी से जल्दी जो स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि मेरे ही कोर्स में ज्वाइन करो। यस, माय कोर्स इज मोस्ट अफोर्डेबल वन। आपको अगर मार्केट में देखोगे 10 से 12 हज़ार के कोर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अगर आप सिर्फ वीडियो वगैरह नहीं देखना चाहते, आप नॉन वीडियो कोर्स में अगर आप जैसे कंटेंट वगैरह पढ़ के समझ पाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली मेरा कोर्स आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली चीज़ें कराई जा रही है। इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज इन नबार्ड ग्रेड, यहाँ पर काफ़ी कम लोग अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन है, 2023 में आपको एक तरह से एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि यहाँ और भी, और धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे यहाँ भी लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया है। यहाँ भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और विद द क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर अवेयरनेस मोर पीपल वुड बी अप्लाई। ओके, तो 2022 का एप्लीकेशन देख सकते हैं, 2021 का नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर और भी कम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पर कंपटीशन और भी कम रहता है। ओके, अब देखो डिफरेंस कहाँ पर आती है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, तो डिफरेंस है एआरडी का। अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन फॉर यू द डिफरेंस इज फाइनेंस मैनेजमेंट। आपको फाइनेंस मैनेजमेंट को अच्छे से करना पड़ेगा, और फाइनेंस मैनेजमेंट को अच्छे से करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीने लगते हैं। हार्डली 40 to 45 डेज आर रिक्वायर्ड, और वो बस 3 से 4 घंटे देने के बाद आपको 40 to 45 डेज में अच्छे से हो सकता है। बिलीव मी, अच्छे से आप ये फाइनेंस में, यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट कुछ ऐसा फैंसी सा नहीं है, बेसिक फाइनेंस मैनेजमेंट है। ओके, जो बेसिक चीज़ है वो आपको दी गई है, वो चीज़ों को आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसा मत समझो कि आपको पूरा का पूरा अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, पूरा ढेर सारी बुक्स कंप्लीट करनी होगी। नो नीड टू डू दैट। उन्होंने पूरा इवेंट सिलेबस में भी उन्होंने दे हैव मेंशन टॉपिक वाइज चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट सिमिलरली एआरडी में देखोगे तो उन्होंने कॉमन चीज़ें जो है हर जगह से पिक किया हुआ है। हालांकि आपको 10 से 11 यूनिट है, बट ये भी आपको 200 से 250 पेजेस के आपको नोट्स बनते हैं। 200-250 पेजेस के आपको नोट्स बनते हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए उतना कुछ ऐसा नहीं बोलो कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। 30 to 35 डेज में आपका एआरडी काफ़ी अच्छे से हो सकता है। और बिलीव में ये मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है और मैं अभी करवाया हूँ। मैंने अपनी, मेरे पास 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं नबार्ड ग्रेड ए के लिए, तो उनको मैंने करवाया इस साल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पॉसिबल है, ये कर पाते हैं लोग। इसीलिए आप ये मत डरो, मैंने जो गलती की वो गलती आप मत करो। आप जो है दोनों एग्जाम का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करो। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो डेली अगर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी देते हो तो भी आप जो है सब कुछ मैनेज कर सकते हो, दोनों एग्जाम्स को मैनेज कर सकते हो। अब देखो दोनों एग्जाम्स होता कब है, ये बात तो मैंने बात की ही नहीं। ओके, अगर अब मैं बात करूं कि एग्जाम होगा कब, सो आरबीआई ग्रेड भी आपको पता है कि मैंने जैसे बोल रखा है कि ये जुलाई अगस्त में आपको पॉसिबल है। प्रीलिम्स इन जुलाई और मेंस इन अगस्त, और नबार्ड जो बेसिकली आपको अक्टूबर नवंबर में होता है। नबार्ड आपको अक्टूबर नवंबर में होता है। सो यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, मीन्स बाय फोकसिंग इनिशियली आपको आरबीआई ग्रेड बी पर फोकस करना है। वंस यू आर डन विद द सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, लेट सपोज आप आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 का सिलेबस जो है वो आपको दिसंबर तक कंप्लीट कर लेते हो आप। अब दिसंबर, इस साल के दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपको क्या बच जाएगा, आपको बस एआरडी करना रह जाएगा। उस एआरडी को आप 1 महीने 30 दिन 35 दिन देकर जो है उसको भी एक बार आप कंप्लीट कर लेते हो। लेट सपोज जनवरी या फरवरी में उसको आप कंप्लीट कर लेते हो। ओके, एंड देन यू कैन फोकस सोनली ऑन द आरबीआई ग्रेड बी वंस अगेन। आप एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर आप आरबीआई ग्रेड बी फोकस करते हो। जैसे आपका आरबीआई ओवर हुआ
देन वंस अगेन यू ब्रिंग आउट योर नोट्स जो आपने नाबार्ड के लिए बना रखा है, उसको निकालते हो, उसको रिवाइज कर लेते हो दो बार 3 बार, और फिर से आप नाबार्ड के लिए रेडी हो जाते हो। तो यही चीजें आपको करनी होती है। सिमिलरली अगर आप सेबी का प्रिपरेशन करो तो सेबी का एक बार तैयारी कर लिया। सो देखो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू गेट रेडी फॉर द एग्जाम, फिर आप कंपटीशन में हमेशा अवेलेबल हो, कंपटीशन में आप कूदते हो, फिर आपका सिलेक्शन होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है कंपटीशन के पीछे भागते हैं। मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम के पीछे मत भागो, पहले रेडी हो जाओ, एग्जाम आपके पीछे झक मार के आएगी। तो एग्जाम के पीछे अगर भागते रहोगे और ये सोचोगे कि नहीं यार मुझे जो है ये एग्जाम निकालना, ये एग्जाम, वो नहीं होता है। पहले आपको रेडी होना होता है, एग्जाम के लिए रेडी होना होता है। वंस यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द थिंग्स, व्हेन यू आर रेडी फॉर, देखो 3 स्टेज में प्रिपरेशन होता है। पहले तो आपको जो है बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको गो थ्रू करना होता है, पढ़ना होता है एक बार अच्छे से, उसको रिवाइज करना होता है, उस पर प्रैक्टिस करना होता है। ओके, वंस अगेन आपको सेकेंड रिवीजन करना होता है, देन यू आर ऑल सेट फॉर द एग्जाम। फिर आप रेडी हो उस एग्जाम के लिए, चाहे वो कभी भी हो, जून में हो, मई में हो, अगस्त में हो, यू आर ऑल सेट फॉर। बस उसके बाद आपको अपने नोट्स निकालने हैं, उसको रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, एंड यू आर ऑल सेट। तो यही चीजें आपको करनी होती है। लेकिन आपको इनिशियली जो अभी का टाइम है, अभी जो 4 से 5 महीने, फरवरी मंथ तक मैं बात करता हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं बात करता हूँ, ये 3 से 4 महीने जो होते हैं ये बेसिक्स को स्ट्रांग करने का टाइम होता है। ये अभी आपके कोर चीजों को फोकस बनाने की होती है। यहाँ पर कम टाइम देकर जो है उसको आपको स्ट्रांग करना होता है, ये वाला टाइम होता है। क्योंकि फरवरी मार्च के बाद फिर से आपको अपडेट्स आने लगेंगे कि हाँ यार अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, और उस चक्कर में क्या होगा कि आपकी चीजें छूट जाती है। फिर आप जो है उस एग्जाम पर फोकस करने लगते हो, और फिर जैसे ही आरबीआई खत्म होता है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन घुस जाता है। फिर नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आप चीजें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो, ना कि आप बेसिक से प्रिपेयर करते हो। और सिलेक्शन नोटिफिकेशन के बाद आपका में भी प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, कुछ लोग फाइनल भी ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ हार्डली कुछ लोग होते हैं, उनको एक्सेप्शंस मान लेंगे। आपको जब तक सब्जेक्ट मैटर पर पकड़ नहीं है, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है, तब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है यार। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। ओके, अगर इतना आसान से हो जाता फिर तो सबका हो गया रहता, राइट। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। सो गाइज, इफ यू हैव प्लान टू इनरोल इन माई कोर्स, देन डेफिनेटली ये जो आपको सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।